ذرا خاموش رہ کر اس نے یوحوا سے پوچھا، تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گی؟ تم مجھے گھر پہنچانے کا معاوضہ لوگے؟ یوحوا نے کہا، میں اور کیا معاوضہ دے سکتی ہوں؟ میں کوئی معاوضہ نہیں لوں گا۔ جرید نے کہا، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اگر میں نے تمہیں کسی سے لڑ کر چھینا ہوتا تو تم میرا انعام ہوت، مگر تم نے مجھ سے رحم مانگا ہے۔ رحم کرنے کا معاوضہ کون لیتا ہے؟ یوحوا اس کے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ جرید بن مصیب لیٹ گیا۔ یوحوا نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے یقین ہو گیا کہ جرید کی نیت میں خرابی نہیں، وہ تو اس کے ساتھ کھل کر بات بھی نہیں کرتا تھا۔ یوحوا پریشان ہو گئی۔ جرید، یوحوا نے پوچھا، کیا میں خوبصورت نہیں؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ جرید نے قہقہا لگایا مگر بولا کچھ بھی نہیں۔ تم کیوں ہنسے ہو؟ یوحوا نے پوچھا۔ میں تمہاری جنسی سے ڈر گئی ہوں۔ خدا کی قسم، تم بہت خوبصورت ہو۔ جرید نے کہا، تم میری پسند کی لڑکی ہو، لیکن جس طرح اور جس جگہ تم مجھے ملی ہو یہ مجھے پسند نہیں۔ میری مردانگی کو مت للکارو۔ تمہارا جسم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرے دوتی مجھ پر لعنت بھیجیں گے کہ میں نے مصیبت میں پھنسی ہوئی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے جسم کو اپنا انعام سمجھ لیا۔ جرید پھر خاموش ہو گیا۔ یوحوا کے دل سے خوف نکلتا چلا گیا اور جرید اسے بڑا ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ میں نے جرید کو مکہ میں کئی بار دیکھا تھا۔ یوحوا نے کعب بن اسد کے گھر میں سب کو یہ کہانی سناتے ہوئے کہا، لیکن میں نے کبھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اپنے قبیلے میں اسے کوئی رتبہ یا اونچی حیثیت حاصل نہیں تھی، مگر اس روزگار میں اس کے پاس تنہا اور بے بس بیٹھ کر مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ تو اونچی حیثیت والے لوگوں سے بھی اونچا ہے۔ آندھی کا زور ٹوٹا تو سورج ڈوب رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، آؤ چلیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے غار سے نکلی۔ کچھ دور اس کا اونٹ ٹیلے کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ وہ اونٹ پر بیٹھا اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اس کے اشارے پر اونٹ اٹھا اور چل پڑا۔ گرد و غبار صاف ہو گیا تھا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی۔ وہ بڑی ہی ڈرونی جگہ تھی۔ میں نے اس جگہ کے متعلق کچھ پر اسرار باتیں سنی تھیں۔ آندھی میں تو میں دیکھ نہ سکی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ آندھی کے بعد دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بعض ٹیلے انسانوں کی طرح تھے، ان کا رنگ بھی ڈراؤنا تھا۔ میں شتر سواری جانتی ہوں، اونٹ کو دوڑا سکتی ہوں، لیکن اس شام جرید کے پیچھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے میں ڈرنے لگی کہ میں گر پڑوں گی۔ میں نے جرید کی کمر میں بازو ڈال کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھ میں یہ احساس بیدار ہو گیا کہ میں بڑی ہی کمزور لڑکی ہوں اور جرید میرا محافظ ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ میں اپنے مذہب کے لیے کیا کر رہی ہوں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس راستے پر مجھے میرے باپ نے ڈالا ہے۔ یوحوا نے انہیں بتایا کہ جب اہل قریش بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر آئے تو ان کی عورتوں نے بازو لہرا لہرا کر بین کیے تھے۔ یوحوا کا باپ کٹر یہودی تھا۔ قریش کی شکست پر اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ قریش کے 1000 جنگجو اگر محمد کے 313 آدمیوں سے شکست کھا آئے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ محمد کوئی جادو لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ محمد کے پیروکار اسی قبیلہ قریش کے آدمی ہیں۔ وہ آسمان سے نہیں اترے، پھر وہ جیت کس طرح گئے؟ اس وقت یوحوا کمسن تھی۔ اگلے روز اس کے باپ نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا جو اس نے گزشتہ رات دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے جو خون سے لال ہے، اور اس کے سامنے ایک آدمی زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے، اس کے کپڑے خون سے لال ہے۔ یوحوا کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے جسے اس نے قتل کر دیا ہے۔ اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ تڑپتا ہوا زخمی مر جاتا ہے اور لاش اپنے اب زمین میں غائب ہو جاتی ہے۔ وہاں سے ایک بڑی خوبصورت اور کمسن لڑکی ابھرتی ہے جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ اس پر اس خواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لیس بن موشان کے پاس چلا گیا اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھی۔
लैस बिन मोशान ने इसे बताया कि वो अपनी कमसिन बेटी यूहावा को इस्लाम की जुड़ें काटने के लिए वक्फ कर दे। इस बूढ़े यहूदी जादूगर ने ये पेशिन गोई भी की थी कि जिसने नबूवत का दावा किया है, यानी नबी करीम वो इस लड़की के हाथों कत्ल होंगे, ये लड़की उनकी नबूवत के खात्मे का जरिया बनेगी। उसने यूहावा के बाप से ये भी कहा था कि वो यूहावा को उसके पास ले आए। यूहावा को लैस बिन मोशान के हवाले कर दिया गया। मैंने इस लड़की की तरबियत की है। लैस बिन मोशान ने यूहावा की बात काट कर कहा, खुदाए बेहुदा ने इसे जो हसन और जो जिस्म दिया है, ये एक दिलकश तलवार है, ऐसे बड़ा मीठा जहर समझ ले। उसने कुरैश को मुसलमानों से टकराने में जो काम किया वो तुम में से कोई नहीं कर सकता। छोटे छोटे कबीलों के सरदारों को इस लड़की ने कुरैश का इत्तेहादी और मोहम्मद का दुश्मन बनाया है। अब इसने मोहम्मद के कत्ल का जो इंतजाम मुझसे कराया है वो उसी से सुनो। यूहादा ने सुनाया कि लैस बिन मोशान ने इसमें ऐसी जुर्रत और ऐसी अक्ल पैदा कर दी कि वो मर्दों पर अपने हसन का जादू चलाने की माहिर हो गई। हुसैन लड़की होते हुए इसमें मर्दों जैसी जुर्रत आ गई थी, लेकिन इसका उस्ताद इसे ये ना बता सका कि जिस नए अकीदे को रोकने का और जिस शख्सियत के कत्ल का उन्होंने इरादा कर रखा है, वो अकीदा खुदा ने उतारा है और इस शख्सियत को खुदा ने इस अकीदे के फरोग के लिए रिसालत अता की है। यूहादा की तरबियत ऐसी ही हुई कि वो अपने मजहब को दुनिया का वाहिद सच्चा मजहब समझती रही और ये ना समझ सकी कि हक परस्तों पर अल्लाह का हाथ होता है। खुदा ने इसे आंधी में तन्हा फेंक दिया, लेकिन वो खुदा का ये इशारा समझ ना सकी। कहाँ वो जरत के मुकाबले में अपने आप को मर्दों के बराबर समझती थी, कहाँ वो एक कमजोर और बेबस लड़की बन गई। वो मर्द के जिस्म से नाआशना नहीं थी। जरीद बिन मुसीब का जिस्म भी एक मर्द का ही जिस्म था, लेकिन इस जिस्म को वो मुकद्दस और पाक समझने लगी और जरीद इसे फरिश्ता लगने लगा। वजह ये थी कि वो इसके हुसैन चेहरे, रेशम जैसे बालों और दिलकश जिस्म से जरा भी मुतासिर न हुआ था। यूहावा पर जरीद के इस रवैये का ये असर हुआ कि वो जरीद के जिस्म में कशिश महसूस करने लगी। मक्का दूर नहीं था। शाम के बाद जब रात गहरी हो चुकी थी, जरीद ने यूहादा को उसके घर पहुंचा दिया। यूहावा के कला नुमा मकान का दरवाजा खुला तो उसका बाप परेशान नजर आया। इसे तवक्को नहीं थी कि उसकी बेटी जिंदा वापस आ जाएगी। उन्होंने जरीद को रोक लिया और शराब से इसकी तवाज़ो की। जरीद जब चला गया तो यूहावा ने अपनी जात में खला महसूस किया। दूसरे ही रोज उसने जरीद को पैगाम भेजा कि उसे मिले। जरीद आ गया। ये एक जज्बाती मुलाकात थी। जरीद ने ये मुलाकात जज्बात तक ही रखी। इसके बाद उनकी मुलाकातें होती रहीं और जरीद के दिल में भी यूहावा की मोहब्बत पैदा हो गई। ये मोहब्बत पाक रही। यूहावा हैरान थी कि इसके अंदर पाकीज़ा और वालिहाना मोहब्बत के जज्बात मौजूद हैं। एक रोज जरीद ने यूहादा से पूछा कि वो उसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। नहीं, यूहावा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे जिस्म की पूजा करती हूं। शादी हो गई तो जज्बात मर जाएंगे। मेरी बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं। जरीद ने इसे कहा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, मुझे बेटा चाहिए। यूहावा सोच में पड़ गई। वो जरीद बिन मुसीब की यह ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। उसे एक रास्ता नजर आ गया। हमारा एक बुजुर्ग है लैस बिन मोशान, यूहावा ने कहा। इसके पास कोई इल्म है, इसके हाथ में कोई ताकत है। मुझे उम्मीद है कि वो अपने इल्म और अमल के जोर से तुम्हें इसी बीवी से बेटा देगा। तुम मेरे साथ चलो, वो मेरा अतालिक है। जरीद इसके साथ लैस बिन मोशान के पास जाने के लिए तैयार हो गया। उनकी दोस्ती दो आदमियों और दो औरतों की सूरत इख्तियार कर गई थी। वो जब इकट्ठे बैठते तो रसूल करीम के खिलाफ बातें करते थे, इस्लाम के फरोग को रोकने के मंसूनी भी बनाते थे। लेकिन जरीद मुसलमानों के खिलाफ किसी जंगी कार्रवाई में शरीक नहीं होता था। यूहावा को इसकी ये बात पसंद नहीं थी। वो उसे उकसाती और भड़कती थी, मेरा मजहब तुम हो। जरीद ने इसे एक रोज फैसले के लहजे में कह दिया था, तुम मेरी बीवी नहीं बन सकती तो ना सही, मैं तुम्हें देखे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हें एक राज बता देती हूं, जरीद यूहादा ने इसे कहा था।
मैं किसी की भी बीवी नहीं बनूंगी। मेरे बाप ने मेरी जिंदगी यहूदियत के लिए वक्फ कर दी है। लैस बिन मोशान ने मुझे ये फर्ज सौंपा है कि इस्लाम के ज्यादा से ज्यादा दुश्मन पैदा करूं। मेरे दिल में अपने मजहब के बाद सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है। मुझे तुम अपनी मलकियत मजियो। एक रोज जरीद यूहावा के साथ लैस बिन मोशान से मिलने इसके पास चला गया। यूहावा इसे लैस बिन मोशान के सामने ले जाने के बजाय पहले खुद अंदर गई और उसने लैस को साफ अल्फाज में बताया कि वो जरीद को मोहब्बत का देवता समझती। उसने लैस बिन मोशान को बताया कि जरीद ने इसे मौत के मुंह से निकाला था। उसने लैस को बताया कि जरीद की बेटियां हैं, बेटा एक भी नहीं। क्या आपके इल्म में इतनी ताकत है कि जरीद की बीवी के बतन से लड़का पैदा हो? यूहावा ने पूछा। क्या नहीं हो सकता? लैस बिन मोशान ने कहा, पहले मैं इसे देखूंगा, फिर मैं बता सकूंगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। इसे मेरे पास भेज दो। यूहावा ने इसे अंदर भेज दिया और खुद बाहर खड़ी रही। बहुत सा वक्त गुजर जाने के बाद लैस बिन मोशान ने जरीद को बाहर भेजकर यूहावा को अंदर बुला लिया। जो शख्स तुम जैसी खूबसूरत और दिलकश लड़की के साथ इतना अरसा पाक मोहब्बत कर सकता है, वो बहुत ही मजबूत शख्सियत का आदमी है। लैस बिन मोशान ने कहा, वो इस कदर कमजोर शख्सियत का हो सकता है कि तुम्हारे हसन का जादू अपने ऊपर तारी करके तुम्हारा गुलाम हो जाए। जरीद मजबूत शख्सियत का आदमी है, यूहावा ने कहा। जरीद की जात बहुत कमजोर है। लैस बिन मोशान ने कहा, मैंने तुम्हारे मुतालिक उसके साथ कोई बात नहीं की। मैंने इसकी जात में उतरकर मालूम कर लिया है। ये शख्स तुम्हारे तिलिस्म का असीर है। मुकद्दस अतालिक। यूहावा ने कहा, आप इसके मुतालिक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं इसे एक बेटा देना चाहती हूं। मुझे इसके साथ इतनी मोहब्बत है कि मैंने ये भी सोच रखा है कि मैं उसके बेटे को जन्म दूंगी। नहीं लड़की, बूढ़े लैस ने कहा, तुम्हारी कोख से इसका बेटा जन्म नहीं लेगा। ये शख्स जरिया बनेगा इस फर्ज का जो खुदाए हुदा ने मुझे और तुम्हें सौंपा है। यूहावा खामोशी से लैस बिन मोशान के चेहरे पे नजरें जमाए हुए थी। जिसे तुम अपनी मोहब्बत का देवता समझती हो, वो इस शख्स को कत्ल करेगा जो कहता है कि उसे खुदा ने नबूवत दी है। लैस बिन मोशान ने कहा, जरीद से ज्यादा मौजू आदमी और कोई नहीं होगा। क्या आप पेशिन गोई कर रहे हैं? यूहावा ने पूछा, ये किस तरह कत्ल करेगा? इसे मैं तैयार करूंगा, ये तैयार नहीं होगा। यूहावा ने कहा, ये कहा करता है कि इसका कोई मजहब नहीं, मोहम्मद को ये अपना दुश्मन नहीं समझता, कत्ल व गारत को पसंद नहीं करता। ये सब कुछ करेगा। बूढ़े लैस ने कहा, इसके जहन पर मेरा कब्जा होगा। तुम मेरे साथ होगी। 3 रोज तक ये सूरज की रोशनी नहीं देख सकेगा। जब हम उसे बाहर निकालेंगे तो ये एक ही बात कहेगा, कहाँ है खुदा का नबी? वो हम में से है। मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। मुकद्दस बाप। यूहावा ने रुंधी आई हुई आवाज में इल्तिजा की। जरीद मारा जाएगा। ये वाहिद शख्स है। खुदाए बेहुदा से बढ़कर मोहब्बत के लायक कोई नहीं। लैस बिन मोशान ने कहा, तुम्हें यह कुर्बानी दीनी होगी। जरीद अब मक्का को वापस नहीं जाएगा। फिर यूहावा भी मक्का को वापस ना गई। जरीद बिन मुसीब भी ना गया। बूढ़े लैस ने दोनों को 3 दिन और 3 रातें एक कमरे में बंद रखा। जरीद को अपने सामने बिठाकर इसकी आंखों में आंखें डाल दें, फिर उसे कुछ पिलाया और जेर लब कुछ बड़बड़ाने लगा। उसने यूहावा को नीम बरहना करके इसके साथ बिठा दिया। लैस यूहावा को जो कहता रहा वो करती रही। ये जरूरी नहीं कि मैं तुम सबको ये भी बताऊं कि मैंने जरीद के जहन और उसकी सोचों को किस तरह अपने कब्जे में लिया है। लैस ने कहा, मैं इसे साथ लाया हूं, तुम इसे खुद देख लो। लैस बिन मोशान ने यूहादा को इशारा किया। यूहावा बाहर चली गई और जरीद को अपने साथ ले आए। जरीद ने अंदर आकर सबको बारी बारी देखा। वो यहां नहीं है। जरीद ने कहा, मैं इसे पहचानता हूं, वो हम में से है। वो यहां नहीं। जरा सब्र करो, जरीद बूढ़े लेट ने कहा।
हम तुम्हें इस तक पहुंचाएंगे। कल जरीद बैठ जा। जरीद यूहावा के साथ लगकर बैठ गया और बाजू उसकी कमर में डालकर उसे अपने और करीब कर लिया। अगली सुबह जब मदीना में लोग फतह की खुशियां मना रहे थे और काब बिन असद के घर रसूल अकरम और इस्लाम के खिलाफ बड़ी ही खतरनाक साजिश तैयार हो चुकी थी, रसूल करीम को याद दिलाया गया कि बन्नू करीता ने, जिसका सरदार काब बिन असद था, मदीना के मुहासरे के दौरान अहल तहरीश और गफान के साथ खुफिया मुआहिदा किया था, जिसे नईम बिन मसूद ने बुरी दानिशमंदी से बेकार कर दिया था। ये वाकया भी 2-4 रोज पहले का था, जिसमें रसूल अल्लाह की फूफी हजरत सफिया ने एक यहूदी मुखबिर को कत्ल किया था। ये मुखबिर इस छोटे से कले में दाखिल होने का रास्ता देख रहा था, जिसमें मुसलमानों की औरतें और उनके बच्चों को रखा गया था। इस यहूदी ने एक औरत को अपने मुकाबले में देखकर बड़े रोब और घमंड से कहा था कि वो यहूदी है और मुखबरी के लिए आया है। हजरत सफिया ने इसकी तलवार का मुकाबला डंडे से किया और इसे हलाक कर दिया था। खुदा की कसम, किसी सहाबी ने ललकार कर कहा, इन यहूदियों पर एतबार करना और उनकी बद अलैहिस्सलामदी पर उन्हें बख्श देना ऐसा ही है जैसे अपना खंजर अपने ही दिल में आता रो लिया जाए। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अस्मा और नाफे हजरत इब्न उमर के हवाले से रवायत करते हैं कि मरुक खंदक के खात्मे पर रसूल अकरम लिम ने फरमाया, तुम में हर कोई नमाज असर बन्नू कर्जा के पास पहुंचकर पढ़े। एक और हदीस में है, जिसके रावी हजरत अनस हैं, उन्होंने कहा था, मैं अब तक लश्कर जिब्राइल का गर्दो गुबार बन्नू खत्म में उड़ते हुए देख रहा हूं। ये इस वक्त की बात है जब रसूल करीम बन्नू कर्जा को बद अलैहिस्सलामदी और धोखाधड़ी की सजा देने गए थे। तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा है कि रसूल करीम के हुक्म से मुसलमानों ने चढ़ाई कर दी और बन्नू कर्जा की कलाबंद बस्ती को मुहासरे में ले लिया। अहादीस के मुताबिक साद बिन मास को बन्नू कर्जा के सरदारों के पास इस पैगाम के साथ भेजा गया कि वो अपनी बद अलैहिस्सलामदी की सजा खुद तजवीज करे। साद बिन मास जख्मी थे। खंदक की लड़ाई में उन्हें कबीला कुरैश के एक आदमी हुबन बिन अरफा की बर्छी लगी थी। लैस बिन मोशान, यूहावा और यहूदियों के 3-4 सरकर्दा आदमी अभी तक काब बिन असद के पास बैठे हुए थे। जरीद तब भी वहीं था। उन्होंने अपनी साजिश का वक्त रात का मुकर्रर किया, लेकिन एक यहूदी दौड़ता हुआ अंदर आया। मुसलमान आ रहे हैं, उसने घबराहट से कांपती हुए आवाज में कहा। साफ नजर आता है कि वो दोस्त बनकर नहीं आ रहे। गर्द बता रही है कि वो चढ़ाई करके आ रहे हैं। गर्द दाएं बाएं फैल रही है। देखो, उठो और देखो। काब बिन असद दौड़ता हुआ बाहर निकला और कला के बुर्ज में चला गया। वहां से दौड़ता उतरा और लैस बिन मोशान के पास पहुंचा। मुकद्दस मोशान, काब बिन असद ने कांपती हुए आवाजे में कहा, क्या आपका जादू उन बर्छियों और तलवारों को तोड़ सकता है जो हमें कत्ल करने आ रही है? रोक सकता है? बूढ़े लैस बिन मोशान ने कहा, अगर मोहम्मद का जादू ज्यादा तेज हुआ तो मैं मजबूर हूंगा। तुम ऊपर जाकर क्या देख आए हो? खुदाए हुदा की कसम, काब बिन असद ने कहा, ये मुखबरी नईम बिन मसूद ने की है। मुझे मालूम न था कि वो मुसलमान हो चुका है। मुसलमान मुहासरे की तरतीब में आ रहे हैं। हम निकल नहीं सकेंगे। इन दोनों को निकाल दो। लैस बिन मोशान ने कहा, यूहावा जरीद को साथ लेकर पिछले दरवाजे से निकल जाओ। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। आप ऊपर क्यों नहीं जाते लैस बिन मोशान? काब बिन असद ने कहा, आपका वो इल्म और वो जादू कहां गया जो तुम इस राज को नहीं समझ सकते? बूढ़े लैस ने कहा, मूसा ने फिरौन को एक दिन मैं खत्म नहीं कर दिया था। ये असा जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो वही है जो मूसा ने दरिया में मारा था तो पानी ने उन्हें रास्ता दे दिया था। ये असा का करिश्मा था कि फिरौन का लश्कर और वो खुद दरिया में डूब कर फना हो गया था। जिस तरह मूसा अपने कबीले को मिस्र से निकाल लाए थे, इसी तरह मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। यूहावा और जरीद पिछले दरवाजे से निकल गए और लैस बिन मोशान भी निकल पड़ा।
मुसलमान जब बन्नू कर्जा की बस्ती के करीब आए तो औरतों और बच्चों में हड़बों बपा हो गई और भगदड़ मच गई। औरतें और बच्चे अपने घरों को भागे जा रहे थे। कोई आदमी मुकाबले के लिए बाहर ना आया। जो मुसलमान टेकरियों की तरफ से मुहासरे के लिए आगे बढ़ रहे थे उन्हें 2 आदमी और एक औरत नजर आई। तीनों भागे जा रहे थे। आदमी जो बूढ़ा था और औरत अपने साथी को घसीट रहे थे। वो पीछे को मोड़ मोड़ कर देखता और आगे नहीं चलता था। वो लैस बिन मोशान, जरीद और यूहावा थे। लैस ने जरीद के जहन पर कब्जा करके उसे रसूल करीम के कत्ल पर आमादा कर लिया था, लेकिन अब जरीद इसके लिए मुसीबत बन गया था। वो इस अमल के ज़ेर असर था जिसे आज हिप्नोटिज्म कहा जाता है। यूहावा अपनी मोहब्बत की खातिर उसे अपने साथ ले जा रही थी। इसे यही एक खतरा नजर आ रहा था कि जरीद मुसलमानों के हाथों मार आ जाएगा, और लैस जरीद को इसलिए अपने साथ ले जाने की कोशिश में था कि उसे किसी और मौके पर रसूल अल्लाह के कत्ल के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन जरीद जादू के ज़ेर असर बार बार कहता था, कहाँ है वो जो अपने आप को खुदा का नबी कहता है? वो हम में से है, वो मेरे हाथों कत्ल होगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मदीना जाने दो। एक मुसलमान ने टीकुर्री पर खड़े होकर उन्हें ललकारा और रुकने को कहा। लैस और यूहावा ने पीछे देखा और वो जरीद को अकेला छोड़कर भाग गए। जरीद ने तलवार निकाल ली। कहाँ है मोहम्मद? जरीद ने तलवार लहरा कर टीकुर्री की तरफ आते हुए कहा, वो हम में से है। मैं इसे पहचानता हूं, मैं इसे कत्ल करूंगा जिसने नबुव्वत का दावा किया है। यूहावा मेरी है, वो ललकारता आ रहा था। यूहावा हबल और इससे ज्यादा मुकद्दस है, सामने लाओ अपने नबी को। कौन मुसलमान अपने अल्लाह के रसूल की इतनी तौहीन बर्दाश्त करता? जिस मुसलमान ने इन तीनों को ललकारा था उसने कमान में तीर डाला और दूसरे लम्हे ये तीर जरीद की दाएं आंख में उतरकर खोपड़ी के दौर अंदर पहुंच चुका था। जरीद के एक हाथ में तलवार थी, उसका दूसरा हाथ दाएं आंख पर चला गया और उसने तीर को पकड़ लिया। वो रुक गया। इसका जिस्म डोला, फिर इसके घुटने जमीन से जा लगे। इसका वो हाथ जिसमें तलवार थी इस तरह जमीन से लगा कि तलवार की नोक ऊपर को थी। जरीद बड़ी जोर से आगे को गिरा। तलवार की नोक उसकी शारग में उतर गई। वो जरा सा तड़पा और हमेशा के लिए बेहिस्सो हरकत हो गया।